Now I'm going to introduce, we have Brother Paul Durai from Malaysia. Such a wonderful man of God. He is on the screen right now, and he will be sharing from the book of Revelation. Deeply has studied and have gone through the books, and you all will get the copy of the book. आज हमारे बीच में ब्रदर पाल दुरे है, मलेशिया ईपो से हमारे बीच में है, और उन्होंने जो है परमेश्वर का वचन को पढ़ा, सीखा और सिखाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। वो इंग्लिश में बात करेंगे हमारे बीच में, और ब्रदर दीपक जी हैं और जो है हमें अनुवाद में हमें मदद करेंगे। और आज शाम को समय जितने भी आप लोग यहाँ पर हैं, वी हैव 35 पीपल एट दिस मोमेंट। मैं सबको मैं स्वागत करता हूँ। आपको टाइम को वैल्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, and we may not be able to clap on the net, but I just want to fold my hands and welcome brother Paul Durai and Deepak, and now over to you. Thank you so much. God bless. Okay. Praise the Lord. Unmute பண்ணிடுங்க. Unmute பண்ணுங்க. Praise the Lord. Pastor Deepak, you have to translate. Yeah, परमेश्वर की स्तुति हो। First of all, I want to bring greetings from Malaysia. और मलेशिया से आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। Let me introduce myself first because I think many of you all would not know me. और सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा, और आप में से बहुत से मुझे शायद नहीं जानते होंगे। My name is Paul Durai. मेरा नाम पॉल दुराई है। I am not a pastor, so you can call me brother. मैं पासवान नहीं हूँ और आप मुझे भाई कह करके बुला सकते हैं। Or uncle for those who are young. और जो जवान हैं वो अंकल भी कह सकते हैं। If you guess my age, I am already 60 years plus, going to be 61 now. और अगर आप मेरी आयु का तकाजा लगाएंगे तो मैं 66 से 160 से ऊपर हूँ। Okay, my parents were born in India, and I was born in Malaysia. और मेरे माता पिता इंडिया में भारत में पैदा हुए और मैं मलेशिया में पैदा हुआ। So I'm a fully Malaysia citizen, and I have came many times to do ministry in India. और मैं पूर्ण रूप से मलेशिया का नागरिक हूँ और कई दफा मैं सेवकाई हेतु भारत में आ चुका हूँ। So I worked as a telecommunication engineer. और मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के रूप में कार्यरत हूँ वहाँ पर। And during my time in Malaysia, I do a lot of ministries in the church level. और कलीसिया के स्तर पर मैं मलेशिया में जब होता हूँ तो कई एक सेवकाइयों को निभाता हूँ या करता And for हूँ। the past maybe 16 to 20 years, I have been doing ministry in South India and also North India. और 16 से 20 साल जो पिछले रहे हैं उनमें तकरीबन उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में सेवकाइयों को करता रहा हूँ। So I am married with 3 children. और मैं शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे हैं। First son is already married, the other 2 are still not married, and they are staying together with me here. और पहला जो पुत्र है वो शादीशुदा है और बाकी अभी जो 2 हैं वो भी बाकी हैं। Okay, और and अभी I तक अपने also अध्ययन want को to कर रहे हैं। I also want to take the time to welcome all of you again for this और class. आप सबका भी इस क्लास के लिए मैं स्वागत करना चाहता हूँ इस समय एक बार फिर से। I'm sure you all are expecting a lot of things about the book of Revelation and Jesus' second coming. और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है प्रकाशित वाक्य किताब यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए I बहुत can सारी assure बातों के विषय में आशा कर रहे हैं। I can assure you that definitely if you follow closely with me, you will surely understand the book of Revelation and also Jesus coming. और मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप प्रकाशित वाक्य की किताब और यीशु के दूसरे आगमन को अच्छे से समझ पाएंगे। I don't know how many of you all are waiting for Jesus Christ. और नहीं जानता आप में से कितने प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। But the Bible is very clear. It says that Jesus is coming back for those who are waiting for him. लेकिन बाइबल जो है एकदम स्पष्ट रूप से कहती है कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आ रहे हैं जो उसका इंतजार कर That रहे is हैं। what is mentioned in about the 5 virgin. There is foolish virgin and wise virgin. और यही जो है 5 समझदार और 5 मूर्ख जो कुंवारियों का जिक्र किया गया है वहाँ पर बताया गया है। Today I want to do
introduction of what we are going to do, and also let you all understand the 10 topics that we will be covering. और आज मैं आपको सिर्फ रूपरेखा दूंगा कि हम कौन-कौन से विषयों को जो है कवर करेंगे और कौन-कौन सी बातें होंगी, जो 10 बातें होंगी, उन बातों को जो है हम उजागर करेंगे। My first statement of my class today, और मेरी पहली जो परिभाषा है आज की क्लास के लिए, Revelation in the Bible is a very easy book to understand. प्रकाशित वाक्य बाइबल के अंदर बहुत आसान किताब है समझने के लिए। Many are telling it is difficult to understand, but I want to assure you that it is a very easy book to understand. और बहुत सारे इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, परंतु मैं कहूँगा कि बहुत आसान है। आपको मैं इसका निश्चय दिलवाता हूँ। Please put aside all the things that you know in one side, and we will concentrate what the Bible is saying, and you will see I got only two conditions to understand that book of Revelation. और अभी तक आपने जो कुछ सुना समझा है प्रकाशित वाक्य के विषय में, उन सारी बातों को आप एक तरफ रख दें और अब जो हम कहने के लिए जा रहे हैं उन बातों पर आप ध्यान दें, तो आप बड़ी भली रीति से आप उन बातों को समझ पाएंगे। Okay? So my first condition is this, that और is जो मेरी पहली शर्त है इसे समझने की वो ये Bible है, interprets the Bible. और वो ये है कि बाइबल बाइबल का अनुवाद करती है या वर्णन करती है। I am sure many people would have told you the same thing. और मुझे पक्का यकीन है बहुत सारे लोगों ने आपसे ये बात कही होगी, But let me explain to you what it means Bible interprets the Bible. लेकिन असल में इसका क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि बाइबल बाइबल का अनुवाद करती है या व्याख्यान करती है। Okay? Please try to understand this first. और सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करें जो हम कह रहे हैं। Okay. I want to show you an example of how Bible interprets the Bible, and that is the thing which we are going to do throughout these coming classes. और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा बाइबल किस प्रकार बाइबल का अनुवाद करती है, उसके बाद हम जो क्लासेस चलेंगी उसका हम If you उपयोग have a करेंगे। Bible with you, please turn to Isaiah chapter 46 verse 10. और अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल लें यशाया 46 और उसकी 10वीं आयत। I will read in English, and maybe Pastor Amen. Deepak can read in Hindi. और Okay. मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, पास्टर दीपक हिंदी में पढ़ेंगे। Isaiah 46 verse 10. यशाया 46 उसकी 10वीं आयत। God says that He is declaring the end from the beginning, and from ancient times things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि वह सॉरी यशाया 40 और उसकी 10वीं आयत लिखा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। Okay. The meaning of this verse, it says that God is going to tell us what is going to happen from the end to the beginning. और इस आयत का मतलब ये है कि परमेश्वर कहना ये चाहता है कि जो अंत है, अंत से लेकर के शुरुआत तक क्या होता रहा है उन बातों के बारे में। Of course, we understand the beginning from the story of Adam and Eve till Jesus Christ and Acts of the Apostles and till Jude. और हालांकि हम समझते हैं कि आदि में शुरुआत में क्या हुआ, किस प्रकार से आदम और हव्वा की कहानी के बारे में हम जानते हैं, उसके बाद यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम जानते हैं, फिर हम प्रेरितों के काम के बारे में जानते हैं। ये सारी बातें हमें पता हैं। But the book of Revelation is actually an end time event or end time plan of God. लेकिन प्रकाशित वाक्य की जो किताब है वो अंत समय की घटना है, अंत समय की परमेश्वर की एक योजना है। It is telling us about what God is going to do in the end time. और ये वो बताती है कि परमेश्वर अंत समय में क्या करने पर है। Like for example in
Revelation chapter 20, 21, 22, you can see that we can see the judgment throne of God. We can see new heaven, new earth, and what is going to happen in eternity. और उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 20 और 21 में कि वहाँ पर जो है स्वेच्छ सिंहासनों का न्याय होगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से अनंत काल में लोग जीवन बिताएंगे, नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। इन बातों के विषय में हम देखते हैं। If you and I believe that God has already informed us everything that is going to happen from the end to the beginning according to this verse, I believe that और any prophecy mentioned in the Bible, you and I must be able to refer where it is. और जब हम परमेश्वर के इस वचन से बातचीत करते हैं कि अंत से लेकर के शुरुआत तक मैं सारी बातें कहता आया हूँ, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी आयत जो है इस बारे में दर्शाती है या बताती है जो यहाँ लिखा हुआ है। Amos chapter 3 verse 7 says, आमोस 3 उसकी 7 कहती हैं, Surely the Lord God does nothing unless he reveal his secrets to his servants and prophets. निश्चय ही परम प्रधान प्रभु अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बगैर कुछ नहीं करता। God will never do anything without informing his prophet of what is going to happen later. और परमेश्वर कोई कार्य नहीं करता जब तक कि वह अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपने ज्ञान को प्रकट ना कर दे कि वो आने वाले दिनों में क्या करने वाला है। And in Habakkuk chapter 2 verse 3 says, For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. और हबक्कुक 2 उसकी 3 में इस प्रकार से कहता है कि निश्चय जो दर्शन की बात है उसे लिख ले, और वो निश्चित समय पर पूरी होगी, हालांकि इसके होने में विलंब भी हो तो भी ये पूरा होकर के रहेगी। God has already spoken from the end to the beginning through his servants. और परमेश्वर पहले ही इसे अंत से लेकर के शुरुआत तक अपने दास लोगों से बातचीत कर चुका है। And he says, even though it delay, और वो it कहता will है कि definitely हालांकि happen. इसमें देर हो जाए तो भी ये निश्चय पूरा होगा। For example, उदाहरण के तौर पर you and I believe that Jesus is coming back. मैं और आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। But do you know when he is coming back? लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कब वापस आएगा? Of course, everybody will tell no one knows the time and hour. और हर एक ये कहेगा कि उस घंटे उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। But Jesus has given us a season of when he will come back. लेकिन यीशु मसीह ने हमें वो ऋतु बताई है, वो समय बताया है कि वो कब असल में वापस आएगा। We will discuss about that season because Jesus said, learn from the parable of the fig tree. और उस जो है ऋतु के बारे में हम सीखेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने कहा उस अंजीर के पेड़ से ये बात सीख लो। In Matthew chapter 24 verse 32. और मत्ती 24 उसकी 32 में वो इस प्रकार से कहता है। We'll go about that later. But what I'm trying to explain to you is that if God has tell everything, then we must be able to identify where it is happening. और कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर ने सारा कुछ पहले से हमें बताया है तो हमें ये चिन्हित करना होगा असल में ये चीज़ें कब होने वाली हैं। I give you an example again. और एक बार फिर से मैं आपको उदाहरण दूंगा, नमूना दूंगा। Let's turn to Matthew chapter 24 मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 निकाल लेंगे। verse 14. Verse 14. 24 उसकी 14 आयत। This is a prophecy. और ये एक भविष्यवाणी है। Okay, this is a prophecy. Jesus prophesied that, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, then the end will come. और यीशु मसीह इस बात में भविष्यवाणी करते हुए इस प्रकार से कहते हैं कि राज्य का सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा।
So Jesus is telling that this gospel of the kingdom must be preached, then only the end will come. और यीशु मसीह साफ कहते हैं कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और तब अंत आ जाएगा। And I know many pastors are telling we have to preach to the whole world, then only Jesus will come. और मैं जानता हूं कि कई एक पासवान इस प्रकार से कहते हैं कि हमें सारे जगत में प्रचार करना है, केवल तब ही यीशु मसीह आएंगे। That is wrong. ये गलत है। That doesn't say Jesus come, the end will come. और ये ऐसा नहीं कहते हैं कि यीशु मसीह आ जाएगा, लिखा है अंत आ जाएगा। So the question is, if it is going to happen, can we tell us where in the Bible it is going to happen? और अगर हम सवाल ये है कि अगर हम कहते हैं कि ऐसा होगा तो कहाँ पर ये लिखा है कि बाइबल में ऐसा होगा? I will show you the verse. और मैं आपको ये आयत बताता हूँ, दिखाता हूँ। Let's turn to Revelation chapter 14, और प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 14 verse 6. और उसकी 6 आयत। Then I saw another angel flying in the midst of the heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea, and the springs of water. 14 verse 6 and 7. और 14 आयत और उसकी 14 अध्याय की 6 और 7 आयत को हम देखेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। So Jesus prophesied that the gospel should be preached throughout the world, then the end will come. और यीशु मसीह कहते हैं कि पूरे संसार भर में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। If you understand the book of Revelation, this is the event which Jesus is talking about, which God has foretold us early. और अगर आप उस घटना के विषय में बातचीत करते हैं बाइबल से, तो ये वो घटना है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते हैं और पहले से उन्होंने हमें बता दिया। Okay, this is an example I am giving you. और ये एक उदाहरण है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। Why I am giving you this example is to tell you Bible prophecy or Bible interprets the Bible. There is a prophecy and that prophecy is taking place. I am showing you the place where it is taking place in the book of Revelation. और जैसा कि हम सीख रहे थे कि बाइबल का अनुवाद करती है, तो अगर कोई भविष्यवाणी कहीं पर कही गई है तो उस भविष्यवाणी का सीधा जो है संबंध कहाँ पर है, तो ये उसका जो है बखान करती है। As I have told you, condition number 1 is Bible interprets the Bible. और जैसा कि मैंने कहा, बाइबल का व्याख्यान करती है। Try not to use our own idea or our own thing to say what is going to happen. और अपने विचार या अपने मत करना के आधार पर जो है उसे ना समझ लें कि क्या होने वाला है। The reason is very simple. क्योंकि कारण बिल्कुल साधारण है। We can be right, we can be wrong. हम सही भी हो सकते हैं और हम गलत भी हो सकते हैं। I know there are many preachers who preach about the book of Revelation. मैं जानता हूँ कई एक प्रचारक हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं जो प्रकाशित वाक्य की किताब से प्रचार करते हैं। But always I limit it within the Bible itself. लेकिन मैं जो है बाइबल से ही मध्य में जुड़ा रहता हूँ, बाइबल से बाहर नहीं जाता। Okay. Number 1, Bible interprets Bible. Number 2, we must पहली बात understand है बाइबल का अनुवाद करती है। दूसरी बात है the Bible is sufficient or enough for us. बाइबल जो है हमारे लिए काफ़ी है। Actually, in truth, we don't need anything to explain what is inside the Bible, except that you and I must read and the Holy Spirit will have to lead us.
और आपको और मुझे बाहर से कोई और सामग्री की आवश्यकता नहीं है जो बाइबल का अनुवाद करके हमें बताए। हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है और बाइबल के ही अंदर सारा कुछ पाया जाता है। यदि हम ध्यानपूर्वक पढ़ें तो हम जो है उसका सही अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं। What do I mean about that? और इससे मेरा क्या मतलब है? The meaning is इसका मतलब ये है, Bible is the word of God. बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। Jesus is also the word of God. यीशु मसीह भी परमेश्वर का वचन है। If you and I say Jesus is enough for us, meaning the Bible is enough for us. अगर मैं और आप ये कहते हैं कि यीशु मेरे लिए काफ़ी है, इसका मतलब ये है कि बाइबल हमारे लिए काफ़ी है, Try बहुत not है। to interpret or say something above the Bible. और बाइबल से अलग जाकर के कुछ और अनुवाद करने की चेष्टा या कोशिश ना करें। In the Bible, बाइबल में we have enough thing to understand to be saved, salvation. हमारे पास प्रचुर मात्रा में सामग्री मौजूद है हमारे को उद्धार प्राप्त करने We के लिए। have enough matters written in the Bible for how we have to live in this world, in this time also. और वहाँ पर जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो हमारे लिए काफ़ी है कि हम इस संसार में किस तरीके से जिएं It और has, किस तरीके से अपना जीवन it बिताएं। has got everything that we need to know in this world. इस संसार में जो कुछ हमें जानने की आवश्यकता है बाइबल के अंदर सारी सामग्री पहले से मौजूद है। Meaning, if you have Jesus and the Word of God with you, you have enough for us. Above that, we don't need. और अगर हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू जो परमेश्वर का वचन है तू हमारे लिए काफ़ी है, तो इसका मतलब है ये हमारे लिए काफ़ी है, इससे ऊपर हमें और किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। We can find out about above thing out of the Bible, but it is of no use for us. और जो ऊपर की चीज़ें हैं वो बाइबल से बाहर हमें मिलती हैं लेकिन उसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है। So, the one who can help us to understand the Bible is the Holy Spirit Himself. और वह जो हमारी सहायता कर सकता है बाइबल को समझने में वो स्वयं पवित्र आत्मा है। Jesus said, when the Holy Spirit come, He will teach us all the things that, bring to remembrance all the things that Jesus has taught, and He will teach us further things what He has not taught. और यीशु मसीह ने कहा जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सारी बातें स्मरण करवाएगा और जो मैंने तुमसे कही हैं उन बातों को भी याद दिलवाएगा। So the next thing, as I have told you, that to understand the book of Revelation, we need to make sure that Bible interprets Bible, and we only limit it inside the Bible, one prophecy to another prophecy which is happening in the Bible itself. और जैसे कि मैंने कहा कि बाइबल का व्याख्यान करती है। दूसरी बात, बाइबल के अंदर ही सारी सामग्री मौजूद है, उसी पर हम निर्भर रहें। So we are going to do that study within that self itself. Okay? और उसी के दायरे में रह कर के हम अध्ययन करेंगे। Okay. Now we want to go in the topics which we are going to share throughout these coming classes. I will share with you the screen. मैं आपके सामने जो है स्क्रीन डालूंगा I am sure you can see the screen. और मुझे पक्का यकीन है कि आपको जो है स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। I will be sharing in this English screen, but later Dr. Kamraj will send you the slides in Hindi with the notes in Hindi. अभी हम आपके सामने जो है अंग्रेजी में लिखी हुई स्क्रीन दिखा रहे हैं, परंतु बाद में डॉक्टर कामराज जी जो हैं आपको हिंदी में ट्रांसलेटेड सामग्री मुहैया करवा देंगे। Just want to give some brief idea of what we need to understand the book of Revelation. और बस थोड़ा सा मैं आपको सारांश में आइडिया बताऊंगा कि हमें किस तरीके से प्रकाशित वाक्य की किताब को समझने की आवश्यकता है। Some basic rules. और ये बहुत ही बुनियादी जो बातें हैं, बुनियादी नियम, वो मैं आपको बताऊंगा। Okay? Number one, ठीक है। of course, we need to come humble before God. और हालांकि हमें परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ आना चाहिए, Because if we think that we know a lot,
then I don't think so the Holy Spirit, who is the author of the Bible, will teach us anything much. क्योंकि अगर हम अपने आप में ये सोचते हैं कि हम बहुत जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पवित्र आत्मा फिर हमें सिखा पाएगा। We need to keep our mind clear and let the Holy Spirit teach us. और हमें अपने दिमाग को एकदम साफ रखना है ताकि पवित्र आत्मा हमें सिखाए और बताए। If you have any questions or anything, immediately after the class, we can discuss about that. And those who want to leave can leave. We can discuss later. और अगर किसी के पास किसी प्रकार का कोई सवाल है, कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो क्लास खत्म होने के पश्चात आपको समय दिया जाएगा, उस समय आप बातचीत कर सकते हैं। The second one is regarding the interpreting the Bible. और दूसरा है बाइबल का अनुवाद करने के बारे में। This I have already made known to you all, that whenever we और want ये to मैंने- talk about the Bible, let us keep it very plain, as though first time coming to learn. और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब हम बाइबल के बारे में बातचीत करते हैं तो मैं बिल्कुल जो है स्पष्ट रहना है, जैसे कि पहली दफ़ा आ रहे हैं सीखने के लिए। God doesn't need a theologian or learned person to understand the Bible. और परमेश्वर को कोई धर्म वैज्ञानिक या सीखे हुए व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है बाइबल को सीखने के लिए। So as long as we are the blessed, those who are poor in spirit, poor in understanding, God will definitely help us. और जो मन में दीन है, परमेश्वर निश्चय ही उनकी सहायता करेगा। I have already explained this, declaring from the end to the beginning. The Bible interprets Bible. और मैंने पहले ही आपको है ये बात बता दी है कि जैसे कि बाइबल जो है वो बाइबल का अनुवाद करती है। Another thing also I have already explained, that God's prophecy, whatever God has mentioned that will happen, will definitely come true. और जो कुछ परमेश्वर कहता है वो निश्चय ही पूरा होगा। That's what it is written in Habakkuk 2:3. और यही हबक्कूक जो है 2:3 में लिखा हुआ है। If Jesus is coming back, he is definitely coming back. अगर यीशु मसीह वापस आ रहा है तो निश्चय ही वो वापस आ रहा है, ये समझ लीजिए। No doubt about that. इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। The only thing, how prepared are we? केवल बात यह है कि हम कितने उस बात के लिए तैयार हैं। Okay, the next one, Bible verses are not always chronological. बाइबल की जो आयतें हैं वो एक क्रमानुसार नहीं लिखी हुई हैं। Meaning, इसका मतलब ये है some of the books in the Bible, it is written, after this thing happened. After this thing happened. कुछ आयतें बाइबल के अंदर ऐसी हैं जहाँ पर ये लिखा है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। So the Bible is not written everything chronological. Some is chronological, some is not chronological. सो बाइबल के अंदर कुछ चीज़ें क्रमानुसार हैं, कुछ चीज़ें अक्रमानुसार हैं, क्रम के अनुसार नहीं हैं। Meaning, in Genesis chapter 1 verse 1 and 2, in the beginning God created the heaven and the earth. और उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आसमान और ज़मीन को बनाया। So the verse number 2, it says, the earth was white, formless, and darkness was covering the earth. और पृथ्वी, दूसरी आयत जैसे हम पढ़ते तो वहाँ लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा छाया हुआ था। So between verse 1 and verse 2, there are so many things which has already happened. और पहली और दूसरी आयत के मध्य में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हो चुकी थी पहले ही, Which is not mentioned inside. और उस पहली और दूसरी आयत का जो अंतराल है उसको बताया नहीं गया है और उसकी चीज़ों को जो है प्रकट नहीं किया गया है। Okay, the next one I just put understanding the books of the Bible, Old Testament and New Testament. अगली बात मैं बताऊंगा बाइबल की किताबों को समझने के बारे में, पुराने नियम और नए नियम। Roughly we need to understand. I think basically many of you all have been in the church for many years, should have able to understand generally the Bible. और आप में से बहुत से जो है काफ़ी समय से कलीसियाओं में जा रहे हैं, तो जो बुनियादी जो बाइबल है आप उसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। Some are written topical. Topical means it is grouped together. The verses are grouped together. और कुछ जो है एक विशेष जो है बात के ऊपर टॉपिकली लिखी गई हैं। Like Matthew chapter 1 to 4 is about Jesus' birth till his temptation.
और जैसा कि मत्ती जो है 1 से लेकर के 4 तक यीशु मसीह का जन्म, फिर उसके बाद जो है यीशु मसीह की 4 तक परीक्षाएँ, उसकी सेवकाई, एक-एक विषय करके लिखा हुआ है। 5, 6, 7. Matthew 5, 6, 7 is about Jesus teaching. और मत्ती 5, 6, 7 में हम देखते हैं यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में, सिद्धांत के बारे में। 8, 9 to 13 is about his parable or miracles. 8, 8, 9, 10 और 13 तक जो है यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में और यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में। What apostle, what Matthew did, he gathered together all in topical. और मत्ती ने क्या किया कि उसने सारी बातों को जो है विषय के रूप में इकट्ठा कर लिया। It's not chronological. ये क्रमानुसार नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन Like- विषय वस्तु के आधार पर लिखे हुए हैं। Like Mark and Luke and Revelation and Epistle, it is written in such a way that it is going one after the other. और उसके बाद मरकुस है, लूका है और पत्रियां हैं, वो एक के बाद एक करके लिखी हुई हैं। This is some basic rules only. और इसको समझने के लिए कुछ बुनियादी नियम हैं। And then I want to explain about why we need to study the second coming of Jesus Christ and understand the book of Revelation. और हमें अप्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने और यीशु के दूसरे आगमन का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। This is very important. और ये जो है वो बहुत ज़रूरी है। Okay? Number one Okay. is that are you prepared? Are we और पहली prepared for बात his है- coming? क्या आप तैयार हैं? क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? ये बातें हम सीखेंगे आने वाले समय में। It is God's next action on this earth. यह परमेश्वर का अगला कदम है पृथ्वी पर कार्य करने का। You know, when the Bible was written, the last person who wrote it was Apostle John in the book of Revelation. और आप जानते हैं कि जब ये लिखी गई, बाइबल लिखी जा रही थी, तब आखिरी व्यक्ति जो लिखता है वो यूहन्ना है, प्रेरित यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी। We cannot add or subtract any words in the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर ना तो कुछ हम निकाल सकते हैं, ना ही कुछ उसमें हम जोड़ सकते हैं। Meaning it is enough and complete. इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी है और परिपूर्ण है। We don't need any other thing. इसके लिए हमें और किसी वस्तु या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। So, now the book of Revelation, sometimes you might be thinking, Jesus is living, Holy Spirit will give us new revelation. No. और कई दफ़ा हम सोचते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा है और पवित्र आत्मा जो है वो हमें कुछ नए-नए प्रकाशन देगा। As नहीं। I've told you, the Bible is complete and enough for us. जैसे कि मैंने आपको बताया, बाइबल जो है परिपूर्ण है और पूरी लिखी जा चुकी है। We don't need new revelations. अब उसमें हमें कुछ और नया रेवलेशन नहीं, प्रकाशन नहीं मिलेगा, जो लिखा है वही मिलेगा। Okay? So the next one is Okay. God gave the book of Revelation for us to know. और परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य की किताब हमें दी ताकि हम जानें। But the book of Daniel was sealed. लेकिन दानियल नबी की जो किताब है वो मोहर बंद है। We will go through that later. You will see God has told John to write the book of Revelation for us to understand what are the events that is going to happen in the end times. और बाद में हम अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य दिया ताकि अंत समय में जो बातें होने वाली हैं उन बातों को समझ ले और जान ले। The question is, are we prepared for our eternal life? और सवाल ये है, क्या हम अपने अनंतकालिक जीवन के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? Meaning, do we have the right faith? इसका मतलब है, क्या हमारा विश्वास ठीक है? Is Jesus is in us? क्या यीशु मसीह अब भी हमारे अंदर है? If I ask each and every Christian, अगर मैं हर एक मसीह से बातचीत करूं we all believe Jesus, we come to the church. और सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके कलीसिया में आते Do हैं, you have the right faith? क्या आपका विश्वास ठीक है, पक्का है? Or is Jesus, do you know that Jesus lives inside us? और क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है? How do you identify that Jesus is living inside us, Holy Spirit is living inside us, the Heavenly Father is living inside us?
और किस प्रकार से हमें ज्ञात होगा या पता लगेगा कि यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, पिता हमारे अंदर रहता है? First John chapter 4 verse 4 says, he who is in the world, he who is inside us is greater than the one who is in the world. और पहला यूहन्ना 4:4 इस प्रकार से कहता है कि वह जो हमारे अंदर है वह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जो संसार में है। Question: how many of you know सवाल। that the triumph Trinity God is inside us? और आप में से कितने इस बात पर विश्वास करते हैं कि त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं? If not, Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 13 verse 5 he says, examine yourself to find out your faith and your whether Jesus lives inside you. और अगर ऐसा नहीं है तो प्रेरित पौलुस जो है वो इस प्रकार से कहता है दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में कि अपने आप को जांचें और परखें कि प्रभु का आत्मा हम में है या नहीं है। He said, test and see. और वो कहता है जांचें परखें और देखें। How many of you have test and see? और आप में से कितनों ने जांच करके परख की है अपनी? We will test that later. हम उसे बाद में परख करेंगे। Are we deceived in our Christian faith, our life? हम अपने मसीह जीवन में धोखा खाए हुए हैं, धोखा खाते हैं। See, we are doing a routine Christian life. Whether are we deceived in our life in Christian faith? और हम अपने व्यवहारिक जीवन में जो दुनियावी जीवन में इसमें धोखे खाते हैं, क्या हम मसीह जीवन में भी धोखे खा रहे हैं? Now again, how do we know we are right? और हमें कैसे पता लगेगा कि हम सही हैं, ठीक हैं? I've told you about that in my introduction. Holy Spirit will teach and guide us. Bible confirms. और मैंने आपको परिचय में पहले ही बता दिया कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करेगा। बाइबल जो है इस बात को प्रमाणित करती है। All reference must be from the Bible. और बाइबल से ही सारे जो है आयतें ली गई हैं। Other person whoever say anything is just information only, not it. Bible is the final authority. और अगर कोई व्यक्ति कुछ और कहता है तो फिर वो एक सूचना हमें देता है, परंतु बाइबल जो है वो आखिरी अथॉरिटी है, अधिकार है। Jesus says, search the Bible, search the scripture and see. And Paul says, be a Berean and have Bible study. और यीशु मसीह कहते हैं बाइबल को देखें, उसको ढूंढें, खोजें। और पौलुस कहता है कि बीरियन लोगों के समान बने जो अध्ययन करने वाले और खोजने वाले लोग थे। Again, I want to tell you, all prophecy whichever is mentioned, you and I must prove in the Bible where it happened. और जितनी भी भविष्यवाणियां हैं जिसके बारे में हम कहते हैं, प्रमाणित करते हैं, वो हमें बाइबल के माध्यम से ही प्रमाणित करनी होंगी, जो कि ये चीज़ वहाँ पर इस प्रकार से है। Okay? So, ठीक है? any teachings must have basics. Basics means कोई भी from the Bible and not just taking one verse there, one verse here and then joining together and coming to conclusion. No. और कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी शिक्षा हो, उसका कुछ बुनियाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ से आयतें मिला करके निष्कर्ष निकाल दिया और उसके बाद अनदेखा करने से आपके विचार विमर्श करना जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप विचार विमर्श करें। The first two chapters which I am going to teach is actually a very basic to understand the book of Revelation. और जो पहले 2 अध्याय मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ, वो बड़े ही बुनियादी बातें हैं प्रकाशित वाक्य की किताब को समझने के लिए। If you understand that, nobody can cheat you anymore. और अगर आप इन बातों को समझ लेंगे तो आपको कोई भी शिक्षा में धोखा नहीं दे पाएगा। Okay, I want to go a little bit fast here. This one you will get the notes. You can see for yourself later. And only those who are in the group will get the notes. Those who are not in the group, please register so that you will also be updated with all the things. Okay? So, Why हम थोड़ा सा तेज many चलेंगे don't study और the उसके book of बाद- Revelation? और क्यों हमें बाइबल अध्ययन करने की आवश्यकता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्ययन नहीं करते बहुत सारे लोग। Okay? Many people Okay. answer these questions. I have asked a lot of places. Hard to understand. और बहुत जगह मैंने सवाल किया है लोगों से कि लोग प्रकाशित वाक्य की किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं समझने में काफ़ी मुश्किल है। Beast, seal, horses, Antichrist, Abyss, 666. और वे कहते हैं कि पशु, मोहर, घोड़े, ख्रिस्त, विरोधी, नरकुंड, 666, ये सब क्या है? इसको समझना बड़ा मुश्किल है। Jesus said in John 14:26, the helper, the और Holy यीशु Spirit, मसीह whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to remembrance all things
that I have said to you. और यीशु मसीह 14:26 में इस प्रकार से कहते हैं, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह उसे स्मरण करवाएगा। Jesus is one of the last prophet who prophesied about end time event, not only during his life in this earth, but also in the book of Revelation. He is the one who is speaking to John. He is telling about what is the prophecy that is going to happen. The Holy Spirit will teach you all things. और पवित्र आत्मा तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। So now the question is, did the Holy Spirit teach you all things? और अब सवाल यह है, क्या पवित्र आत्मा ने तुम्हें सारी बातें सिखाई? If he teaches all things, there is nothing hard to understand. अगर वो सारी बातें सिखाए तो समझने में कोई बात मुश्किल नहीं रह जाएगी। The next one is too confusing subject and many different views. और अगली बात है, उलझा हुआ विषय है, साथ ही बहुत सारे मत हैं। With rapture, pre, mid, post, millennium, beast, so many different views people give. और बहुत सारे लोगों के मत पाए जाते हैं, विचार पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मेघारोहण, पूर्व, मध्य और अंत में, और शताब्दी राज्य, पशु, मोहर, कटोरे, न्याय, कलीसिया इत्यादि। 1 Corinthians 14:33 says, God is not an author of confusion, but of peace. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 उसकी 33 में लिखा है कि परमेश्वर जो है उलझन का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। If we are confused, something अगर is हम not right. असमंजस में हैं या संदेह में हैं तो इसका मतलब है कि हाँ, कुछ ना कुछ गलत है। Okay, the next one, don't know where to start. और बहुत से तो ये कहते हैं कि मालूम नहीं कहाँ से शुरुआत करें पढ़ना। Too many symbols, hidden reference, modern day events, so many things. और बहुत सारी सांकेतिक भाषा है और हालिया घटनाओं से संबंधित आयतों का गठजोड़ है, तो इसको किस तरीके से जो है समझें। Simple. No need to go बिल्कुल आसान। very hard all. Just find where is the prophecy and see where it is happening in the Bible itself. Because God has already told from the end to the beginning. If you can understand these two, everything will come into place. क्योंकि हमें एक बात को समझ लेना है, परमेश्वर ने अंत से लेकर के शुरुआत तक सारी बातें कह दी हैं, इसलिए हमें ये देखना है कौन सी भविष्यवाणी कब हुई है और वो कहाँ पर घट रही है। इस बात को अगर हमने समझ लिया तो बड़ी आसानी से हम बाइबल का अनुवाद कर सकते हैं। Some will tell it is a very wide topic. और कुछ तो कहते हैं विषय जो है वो काफ़ी विशालकाय है, बहुत बड़ा विषय है Many puzzle to solve. और काफ़ी उलझने हैं सुलझाने के लिए इसके अंदर। Actually, if you understand the Bible by this time you and I should be teachers already. But और now we still need somebody to teach us. और बाइबल कहती है कि जब से हमने प्रभु को जाना तब से, अगर हमने जो है प्रभु में सही बड़े होते तो तब से लेकर के अब तक हम गुरु हो गए होते, लेकिन अभी भी हमें किसी को, कोई ना कोई व्यक्ति हमें सिखाए, इसकी ज़रूरत पड़ती है। Do you know why we cannot become a teacher of a Bible? क्या आप जानते हैं क्यों हम बाइबल के शिक्षक नहीं हो पाते हैं, बन नहीं पाते हैं? Our lifestyle is always repeating all the basic things. क्योंकि हमारा जो जीने का तरीका है वो बार बार बुनियादी बातों का ही दोहराता रहता है। We didn't ask the Holy Spirit to teach us deep secrets of God. और हम पवित्र आत्मा से पूछते नहीं हैं कि अपने गुप्त भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करें। And there are some people who always say this, they are not interested. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें कोई रुचि नहीं है इसमें। God says, seek ye first the kingdom of God, how God's kingdom is. और परमेश्वर कहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें कि उसका राज्य कैसा है। And his righteousness, and then only he will add everything to you. Not only what you require in the world, in our spiritual life too. और उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करें तो सारी वस्तुएं तो मिल जाएंगी। जो कुछ आपको आपके जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें परमेश्वर आपको मुहैया करवाएगा। Okay, now we want to go to the 10 topics. I will just brief you all. Even the coming week also, I will brief you all in this. Please bring many other people so that we can go through this. Okay, number और 1. ये 10 विषय को मैं आपको जो है बताना चाहूँगा और इसमें से हम होकर के गुजरेंगे। आने वाले समय में जो है आप और लोगों को आमंत्रित करें ताकि वे आकर के हमारे साथ सीख सकें और प्रभु के नाम की महिमा कर सकें। I want to let you understand this very clearly, that मैं Daniel चाहता हूं 70 कि weeks prophecy, which is written in Daniel chapter 9 verse 24 to 27,
if anyone do not understand that prophecy, he will confirm cannot understand the book of Revelation. और एक बात को आप अच्छे से समझ लें कि दानियल का जो 70 सप्ताह की भविष्यवाणी है, जो कि 9 अध्याय 24 से लेकर के 27 में लिखी हुई है, अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो आप प्रकाशित वाक्य की किताब को भी नहीं समझ पाएंगे। You know, from the time of Adam to Abraham, God chose Abraham, a man of faith, and through him the Israelites was born. और आप जानते हैं आदम से लेकर के अब्राहम तक परमेश्वर ने एक व्यक्ति अब्राहम को चुन लिया जो विश्वास वाला व्यक्ति था और Through- उसके द्वारा इज़राइल को लेकर के आया। Through the 12th tribe of Jacob, Israel was formed. और याकूब की 12 संतानों के द्वारा इज़राइल का जन्म हुआ, इज़राइल बनाया गया। So every time God wants to speak to the people, he speaks to the Israelites, prophets, or the people in the Israelites' time. और जब भी परमेश्वर लोगों से बातचीत करना चाहता है तो वो इज़राइल के माध्यम से ही बातचीत करता है या इज़राइल के समय में रहते हुए बातचीत करता है। But when the Israelites denied God, they were in Babylon. God spoke to Daniel the 70 weeks prophecy. He gave Daniel the 70 weeks परंतु- prophecy. परंतु जब इज़राइल ने इनकार कर दिया और जब दानियल और उसके लोग जो है बाबुल में गुलामी में थे, उस समय परमेश्वर ने दानियल से बातचीत करना शुरू किया। You see, Daniel was praying what will happen to the Israel and his holy city Jerusalem. और दानियल जो है वो प्रार्थना कर रहा था कि इज़राइल का क्या होगा और उस पवित्र नगर यरूशलेम का क्या होगा। But God told him that they are given 70 weeks. परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे लोगों और पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह का समय दिया गया है। In that prophecy, God told Daniel to close and seal up in Daniel chapter 12, verse 4 and verse 9. और दानियल नबी की किताब अध्याय 12 4 से लेकर के 9 तक जो है इस प्रकार से कहता है कि दर्शन की बात पर मोहर कर दे क्योंकि ये अंत समय तक के लिए बंद है। So the question is, if you can give me some time, I will explain to you what are the things that is understandable in that prophecy and what is hidden. I will show you what is hidden in the book of Revelation. और अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कौन सी बातें हैं जो समझने के लायक है, आप समझ पाएंगे, और कौन सी बातें हैं जो उसमें छिपी हुई हैं जो बंद हैं। This is the Bible study that we are going to go through. This is the best chapter I have ever seen. If you understand this, you can understand the book of Revelation. और यही बाइबल अध्ययन है प्रकाशित वाक्य के ऊपर। अगर आपने दानियल के 70 सप्ताह को समझ लिया तो प्रकाशित वाक्य की किताब को आप आसानी से समझ लेंगे। Sealed in Daniel, revealed in Revelation. और दानियल की किताब में मोहर बंद की गई परंतु प्रकाशित वाक्य की किताब में खोल दी गई। This is the secret. यही भेद है। Okay, the next one. अगली God's master plan. परमेश्वर की महत्वपूर्ण योजना। If you understand the Bible अगर आप बाइबल को समझें from Genesis to Revelation, और उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य की किताब तक God has a perfect, wonderful plan for human. परमेश्वर के पास एकदम सिद्ध योजना है मानव जाति के लिए। But before we understand this plan, लेकिन इससे पहले हम जो है इस योजना को समझें we must try to understand what happened before Adam was created. Pastor Deepak got some urgent thing? I think he is disconnect. Pastor Deepak, are you there? yes can So we Okay. must understand what happened before this world was recreated. और हमें समझ लेना है कि इस संसार की पुनर्रचना से पहले क्या हुआ था। Meaning before creation.
इसका मतलब है कि सृष्टि की रचना से पहले क्या हुआ। And we must also understand after the new heaven, I mean the old heaven and old earth is destroyed with new heaven and new earth, what is going to happen after that, eternity. और ये भी समझ लेना है कि इससे पहले जब ये पुराना आकाश और पृथ्वी जाती रहेगी, तो जब नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी तब क्या होगा। In God's master plan, human are given 7,000 years only. और परमेश्वर की मुख्य योजना के अंतर्गत मनुष्य को 7,000 वर्ष का समय दिया गया है, केवल 7,000 वर्ष। From the time of Adam till Abraham is 2,000 years. और आदम से लेकर के अब्राहम तक 2000 साल गुजरे। From the time of Abraham till Jesus Christ is 2,000 years. और अब्राहम से लेकर के यीशु मसीह तक 2000 साल गुजरे। Meaning from Adam to Jesus Christ is 4,000 years. इसका मतलब यह है कि आदम से लेकर के यीशु मसीह तक 4000 साल हो गए। From the time of Jesus Christ till now is 2,000 years. और यीशु मसीह से लेकर के अब तक 2000 साल बीत चुके हैं। When Jesus comes, then Jesus is going to rule this earth for 1,000 years. और जब यीशु मसीह आएगा तब 1000 साल के लिए इसी पृथ्वी के ऊपर शासन करेगा। So 4,000 plus 2,000 plus 1,000 is 7,000 years in total. और हम देखते हैं कि 4000 साल, फिर 2000 साल और जमा 1000 साल, कुल मिलाकर के 7000 साल। 7 is a perfect number for God. और 7 जो है परमेश्वर के लिए एक सिद्ध गिनती है। So we will see about this God's master plan. सो हम इस परमेश्वर के महायोजना को Why देखेंगे। he created human being. परमेश्वर ने मनुष्य की रचना आखिरकार क्यों की। You could give me a lot of reason, but if you understand that reason, then you understand God what he wants us to do. आप मुझे बहुत सारे कारण बताएंगे, परंतु अगर आप उस कारण को जान लेंगे जो है वाकई में, तो आप परमेश्वर को समझने के लायक हो जाएंगे। All the while from the beginning till now, he's seeing the human who will repent and have faith in him. और सृष्टि की शुरुआत से जब से उसने मनुष्य को बनाया तब से लेकर के अब तक वो इस बात की ओर आंखें लगाए हुए है, कौन है वह जो मन फिराए। So that people will be with him, eternity with him. और वे लोग जो मन फिराए हुए हैं अनंत काल में उसके साथ जिएंगे। The next one is 2 phases of Jesus' second coming. यीशु मसीह के आगमन के 2 चरण हैं, 2 भाग हैं। As we all are waiting, we are जैसे कि waiting for Jesus to come and take his bride or the church back. और जैसे कि हम यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं कि उसकी दुल्हन उसकी कलीसिया को आकर के ले जाए। When we go up and meet Jesus in the cloud, और जब हम आकाश में ऊपर जाएंगे और बादलों पर यीशु मसीह से मिलेंगे, then the Antichrist will come and then there will be a 7 years tribulation period. और तब ख्रिस्त विरोधी आ जाएगा और 7 साल का महाक्लेश होगा। At the end of the 7 years, the bride and Jesus Christ comes down and Jesus will start ruling this earth for a millennium. और 7 साल समाप्त हो जाने के बाद जो कि महाक्लेश के होंगे, प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन और संतों के साथ नीचे उतरेगा और तब 1000 साल के लिए इसी पृथ्वी के ऊपर शासन करेगा लिखित तौर पर। Many will have a confusion about this which is now happening in the world. और अभी जो कुछ हो रहा है संसार के अंदर, इसके बारे में लोग बड़े संदेह में पड़े हुए हैं। But I want to tell you, if you understand what is hidden in Daniel and revealed in Revelation, this is no problem for you to understand. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ये समझ लिया दानियेल की किताब में क्या छिपा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में क्या खोल दिया गया है, तब आपको ये इलाका समझने में मुश्किल नहीं होगी। That is why I always say, what is sealed in Daniel and revealed in Revelation, you understand that this is very easy for you. और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं दानियेल के अंदर क्या छिपा हुआ है और प्रकाशित वाक्य में कौन सी चीजें खोल दी गई हैं, अगर ये समझ लिया तो बाकी के विषयों को समझना बड़ा आसान हो We जाएगा। will also do the comparison and reasons. और हम जो है तुलना भी करेंगे और कारण भी जानेंगे। I will just give you this rapture. Where does it happen in the book of Revelation?
is Revelation chapter 4 verse 1. और प्रकाशित वाक्य की किताब में आखिरकार मेघारोहण कब हो गया, तो उसका जो बारे में आप जानेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसकी पहली आयत से। Where does it happen, the return or the glorious happening, appearing, is Revelation chapter 19. और कहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का महिमामय आगमन होगा इस पृथ्वी के ऊपर, प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 19। We will see that. और हम इन बातों को देखेंगे आगे चल के। The next one is message to the 7 churches. अगली बात हम देखते हैं 7 कलीसियाओं को संदेश। There's a lot of confusion about will the church go through great tribulation. और इसमें बहुत सारे संदेह हैं लोगों को कि क्या कलीसिया महाकलीसिया होकर के गुजरेगी। 7 churches is written in chapter 2 and chapter 3 of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 2 और 3 में 7 कलीसियाओं के विषय में जिक्र किया गया है। I want to say this, that majority of the church, they preach from Genesis to Jude, but they forgot to preach what Jesus as a judge who is a judge, who is going to judge, how he see the church is written in chapter 2 and chapter 3. और मैं कहूँगा कि ज़्यादातर बल्कि मुख्यतः जो कलीसियाएं हैं वो उत्पत्ति की किताब से लेकर के यहूदा तक प्रचार करती हैं, परंतु यीशु मसीह जो एक न्यायी के रूप में है वो कलीसियाओं को कैसे देखता है ये प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 2-3 में लिखा हुआ है। All the 7 churches, he said, I know your deeds and your work. 7 कलीसियाओं से वो इस प्रकार से कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। All the 7 churches, the last sentence is, he who has ear, let him hear what the Spirit says to the churches. और 7 कलीसियाओं से यीशु मसीह एक बात अंत में कहते हैं, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Meaning churches means include us. और कलीसियाओं का मतलब है हम भी उसमें शामिल हैं। And finally, he also say that out of the 7 church, 5 churches he say repent. और 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं से वो इस प्रकार से कहता है मन फिरा। The judge of the earth is telling all Christian churches to repent. जो पृथ्वी का जो परमेश्वर जो न्यायी है वो इस प्रकार से ज़्यादातर मसीह लोगों से कहता है कि मन फिरा। If we don't repent, we are not the overcomers. अगर हम मन नहीं फिराते हैं तो हम जयवंत लोग नहीं हैं। Okay, so we need to repent from what the judge of the earth, Jesus Christ, is telling us. और पृथ्वी का न्यायी यीशु मसीह जो हमसे कहता है मन फिरा, इस बात को हमें समझ लेना है। This is on chapter 4. और ये 4थे अध्याय में लिखा The है। next question, will the church go through the great tribulation? अगला सवाल है क्या कलीसिया को महाक्लेश से होकर के गुजरना होगा? 100% no. तो 100% नहीं में जवाब है मेरा। That is why I say always, if you understand the basic chapter 1 and chapter 2, the others all, you will never have confusion about all these things. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अगर बुनियाद को समझ लिया अध्याय 1 और 2 तो उसके बाद आपको कभी भी कोई संदेह नहीं होगा आगे। The next one, how to get prepared. Can't hear you, Pastor. Pastor Deepak, we can't hear you. हेलो। Yeah. या How to get prepared. और तैयार किस प्रकार रहें। Okay. If I were to ask all the Christians or the church and you and I who are here, how to be safe, what will be your answer? और अगर मैं आप जो यहाँ पर हैं अगर आपसे पूछूं कि उद्धार कैसे पाएं तो आपका क्या जवाब होगा? If you say by believing Jesus, then your answer is wrong. अगर आप कहेंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त होता है तो आप गलत हैं। Even the devil believed Jesus. Is the devil safe? यहाँ तक कि शैतान भी विश्वास करता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, क्या वे बचाए जाएंगे? So this is where we want to say you need to believe the right gospel. तो यहाँ पर जो है आपको एक सही सुसमाचार पर विश्वास करने की आवश्यकता है। Many people or many Christians do not know
what is the right gospel written in the Bible. और बाइबल में सही सुसमाचार क्या है, जो असल सुसमाचार है, बहुत सारे विश्वासी मसीही जानते ही नहीं हैं। We might be a Christian for many years, और हो सकता है कि हम कई वर्षों से मसीह हों, but if our gospel is already changed, then we are also very foolish people. और अगर हमारा सुसमाचार हम तक पहुंचते पहुंचते बदल गया है, तो हम बड़े ही मूर्ख किस्म के लोग हैं, Gospel never change. क्योंकि सुसमाचार जो है वो कभी बदलता नहीं है। So that is the gospel you and I need to believe in our heart and confess with our mouth. और जो सुसमाचार है वो ये है कि हमें अपने हृदय से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है। In the entire Bible, gospel is written in only one place. और पूरी बाइबल में सुसमाचार जो है वो केवल एक ही स्थान पर लिखा हुआ है। It is written in 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. और ये पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 3 और 4 आयत में लिखा हुआ है। Next question is why Jesus must come like a thief? और अगला सवाल है, यीशु मसीह चोर के समान क्यों आ रहा है? Jesus loved us and he died for us. यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, वो हमारे लिए मारा गया, He loved us so much that he is willing to die. और वो इतना प्यार करता है कि वो हमारे लिए मर गया। Why can't he let us know when he is coming? Why he तो must come like a क्यों thief? वो हमें बता नहीं देता कि वो कब आएगा, चोर की मानंद क्यों आ रहा है? We'll be seeing that in that topic. And the next one is Jesus have और इसके mentioned विषय में हम अगले इन बातों में देखेंगे। अगला विषय है, Jesus have mentioned that those who will rapture and who will not rapture. और यीशु मसीह जो है बताता है कि कौन उठाए जाएंगे और कौन नहीं उठाए जाएंगे। There are 10 verses which says those who will never rapture. Jesus और mentioned. 10 जो है आयतें ऐसी हैं जहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बताया कि कौन लोग उठाए जाएंगे, कौन लोग नहीं उठाए जाएंगे, यानी कौन लोग मेगारोहण में जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे। The next one is, are we being deceived? और अगला है, क्या हमें धोखा दिया जा रहा है? It's actually a continuation of are we prepared? और असल में ये क्या हम तैयार हैं का जो है लगातार कंटिन्यूशन है। What is the gospel? Just now I told you 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. That is the true saving gospel. और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सुसमाचार क्या है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 3 और 4। We are also going to see seven types of teaching in the Bible. और बाइबल के अंदर 7 प्रकार की शिक्षा के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, Which the apostles warn Timothy, Titus and even the Christians that you have to be careful. और जहाँ पर पौलुस ने तीमुथियुस को तीतुस को जो है बताया और उन्होंने उससे कहा कि इन बातों में जो है सावधान रहें। 7 type of teaching. ये 7 प्रकार की जो शिक्षा है, The question is, are we teaching like them? क्या हम उनके समान शिक्षा दे रहे हैं? Are we false teachers or are we true क्या teachers हम of the Bible? झूठे शिक्षक हैं या हम सच्चे शिक्षक हैं, ये हमें देखना है। We will see that, and we will also see the current people who are teaching wrongly. और हम इन बातों को भी देखेंगे और हालिया आजकल के जो लोग हैं वो बड़े गलत तरीके से सिखा रहे हैं, ये भी देखेंगे। The next one is the tribulation period, which is the 7 seals. अगला है महाक्लेश काल, जिसमें 7 मोहरें हैं। Revelation chapter 6 to Revelation chapter 19. और 14 प्रकाशित वाक्य chapter. अध्याय 6 से लेकर के प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 तक 14 जो अध्याय हैं। If you and I understand the chapter 1 and chapter 2, this tribulation मैं- period about the 7th seal is the very easy chapter. अगर मैं और आप जो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और 2 को समझ लेंगे तो ये 7 जो मोहरों के खुलने का जो समय है उसको आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। This is the place where many people get confused. और ये वो स्थान है जहाँ पर बहुत सारे लोग संदेह में पड़ जाते हैं कि You क्या remember है? Revelation chapter 6 about seal 1, seal 2, the 4 horses? और आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में मोहरों का खोला जाना और उसके बाद जो है घोड़ों का निकलना। Revelation chapter 11 regarding the 2 witnesses. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में आप देखते हैं 2 गवाहों के बारे में। Revelation chapter 7 and chapter 14 regarding the 144,000.
अध्याय 7 में आप देखते हैं 1,44,000 उन धर्मियों के बारे में। After the seventh seal is opened, there is seven trumpet. At the last trumpet, there is seven bowl or vial judgment. और 7वीं जब मोहर खोली जाती है तब आप 7 तुरही के बारे में, और आखिरी जो न्याय है वो 7 प्यालों वाला न्याय है। So this is a very easy chapter if you can understand the first two chapters. और अगर आप पहले 2 अध्याय समझ लेते हैं तो ये बाकी की जो अध्याय हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे समझने के लिए। This chapter within a day we will finish. और ये जो अध्याय हैं हम एक ही दिन में समाप्त कर सकते हैं। But are we being deceived? It will take at least 2 to 3 days. और क्या हमें धोखा दिया जा रहा है या हम धोखा खा रहे हैं, इसके लिए कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। You will come to appreciate, oh, tribulation is that only. I don't need to worry. Next time anybody take any verse there, you will know what actually it means. और आप आएंगे और आप आकर के कहेंगे अरे महाक्लेश ऐसा ही है, ठीक है, फिर तो बिल्कुल आसान है। अगली दफ़ा आपके पास कोई भी आएगा तब आप बड़ी आसानी से उन्हें ताड़ लेंगे, समझ लेंगे। The next one is, if somebody can turn to 1 Corinthians chapter 15 verse 23. और अगर कोई निकाल सकता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसकी 23वीं आयत, If you can read that, I will appreciate that. और अगर कोई पढ़ लेता है तो मैं उनकी सराहना करता हूँ। 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और उसकी इसी 23वीं कारण आयत। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के ही द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। Amen. Okay. Listen carefully. In chapter 15, Paul is talking that Jesus rose up on the third day. और अध्याय 15 में पौलुस जो है वो इस प्रकार से बातचीत कर कहता है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया And living forever. और हमेशा के लिए जीवित है। If you and I don't believe that, we are not a Christian. अगर मैं और आप ये विश्वास नहीं करते हैं तो हम मसीह नहीं हैं। But if you and I believe that, लेकिन मैं और आप ये विश्वास करते हैं because that अगर, is a part of the gospel, क्योंकि ये सुसमाचार का एक हिस्सा है, the next one you and I need to believe is, Apostle Paul is telling, each one in his own order. तब अगली बात पौलुस प्रेरित कहता है जिसके ऊपर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि हर एक जन Jesus, अपने अपने क्रम के अनुसार। Jesus was resurrected from dead to alive. यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हो गया। Jesus is the first one in the whole world. यीशु मसीह पहला वो व्यक्ति है जो जी उठा पूरे संसार के अंदर, who died and came back to life and living forever. जो मारा गया, गाड़ा गया और जीवित हो गया और हमेशा के लिए जीवित है। And after him is those who are Christ or who belong to Jesus Christ. और उसके बाद वे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु के हैं, वे जी उठेंगे। Meaning, मतलब from Adam till the 7,000 years of God's plan, everybody is going to die. और इसका मतलब यह है कि आदम से लेकर के 7,000 साल का जो समय दिया गया है इसमें हर एक व्यक्ति को मरना है। Hebrew chapter 9 verse 27. और इब्रानियों 9 उसकी 27 में कहता है, It is appointed for a man to die once and after that judgment. और मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का ठहराया जाना निश्चित है, पक्का है। So everybody is going to die, हर एक को मरना होगा, मरेगा। but there is a question which Apostle Paul has written, each one in his own order. परंतु पौलुस प्रेरित ने एक सवाल जो है वो छोड़ा है, हर एक जन अपने अपने क्रम के अनुसार। When is
Adam or Abraham is going to come to life or resurrect. और कब आदम या अब्राहम पुनर्जीवित होंगे, उनका समय क्या होगा, उनका क्रम क्या होगा? When is you and I going to come up to life? मैं और आप मरने के उपरांत कब जी उठेंगे, ये वो समय कौन सा होगा? When will be the 7 years tribulation period people will come up to life? और कब जो 7 साल का जो महाक्लेश होगा, उसमें जो लोग मरेंगे वो कब जिएंगे, कब जिंदा होंगे? When will the wicked people come back to life again or resurrected और again? कब जो दुष्ट लोग हैं उनको कब पुनर्जीवन मिलेगा? All will be resurrected. सब जी उठेंगे, चाहे बुरे हों चाहे अच्छे हों, सब Some जिंदा to होंगे। everlasting life, some to second death or everlasting death. कुछ जो है हमेशा के जीवन के लिए जी उठेंगे और कुछ अनंतकालिक मृत्यु के लिए जी उठेंगे। Here we will see there is 7 chronological event of resurrection. यहाँ पर हम देखते हैं काल कर्म के अनुसार 7 जो है लोगों के जी उठने के ऑर्डर हैं या क्रम हैं। Only if you understand the book of Revelation, you will understand this. अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब को समझेंगे तभी आप ये जी उठने का क्रम भी समझ पाएंगे। We will also see the meaning of death और हम जो है मृत्यु के मतलब को देखेंगे and the 7 orders of resurrection और 7 क्रम देखेंगे जी उठने वाले। in the book of Revelation. ये प्रकाशित वाक्य की किताब से है। Next one, we will see places in heaven and hell. और अगली बात जो है हम स्वर्ग और नरक में स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। There are many words which are given in the Bible: Gehenna, paradise, lake of fire, abyss, and Jesus also teach about hell. और इस स्थान के लिए कई एक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे गिहन्ना, स्वर्ग, नरक या आग की झील, एबेस, और यीशु मसीह ने भी नरक के विषय में I सिखाया। want to let you know that there are 7 places in heaven. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Can't hear you, Pastor. Still can't hear you. हेलो, Yes. ओके, Can't hear you. I think your mic is muting, intermittent. It's frozen. Deepak, are you there? Yes. Okay. yes, Okay, go Yes. ahead. ओके, Okay, there are 7 places in heaven. और स्वर्ग के अंदर 7 स्थान हैं 5 places are already mentioned in the Bible. और 5 जो स्थान हैं वो पहले ही बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं Another 2 places will be created later. और 2 स्थान जो है वो बाद में रचना की जाएगी उनकी, That is new heaven and new earth. और वो नया स्वर्ग और नई पृथ्वी है। When our old heaven and old earth is being destroyed or और जब passed हमारा away, पुराना स्वर्ग और पुराना पृथ्वी जो है वो जाती रहेगी। I want to put a question to you. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। You have heard that Jesus have mentioned that I am going to prepare a place for you in my Father's house. और आपने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि मैं अपने पिता के यहाँ तुम्हारे लिए John जगह chapter तैयार करने 14 जाता verse हूँ। 2 and 3. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 2 और 3 आयत। I am going to prepare a mansion for you in my Father's house. मैं तुम्हारे लिए अपने पिता के यहाँ जगह तैयार करने जाता हूँ। Then why does he create a new heaven and new earth? Who is going to stay there? तब वो नया स्वर्ग और नया आकाश और नई पृथ्वी क्यों बनाएगा, वहां पर कौन रहेगा? So if I am going to ask you a question, where are you going to stay eternity in the new kingdom of God? और अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप अपना अनंत काल परमेश्वर के राज्य में कौन सी जगह पर बिताएंगे? In the place Jesus has prepared in heavenly Jerusalem, क्या वहां पर बिताएंगे जो स्वर्गीय यरूशलेम है, जहां यीशु मसीह जगह तैयार Or करने new के लिए heaven? गया हुआ है, या नए आकाश और नई पृथ्वी, नए Or स्वर्ग new और नई earth? पृथ्वी में, या फिर नई पृथ्वी पर? where are you going to stay? तो आप कहां पर अपना अनंत काल बिताने जा रहे हैं? Or if we don't keep our faith till the end,
we might end up in the lake of fire. और अगर हम अंत तक अपना विश्वास कायम ना रख पाए तो शायद हो सकता है कि नरक की आग में अपना अनंत काल बिताएं। This is a very spiritual topic. और ये बहुत ही आत्मिक विषय सामग्री है। Here we will be discussing regarding hell यहाँ पर हम नरक के विषय में and बातचीत कर what रहे Jesus हैं teach about hell. और यीशु मसीह नरक के बारे में क्या सिखा रहा था उस बारे में बातचीत करेंगे। The final topic आखिरी जो विषय होगा is reward. ये प्रतिफल है। Reward is something Jesus is bringing for us when he comes. और प्रतिफल का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमें उपहार के रूप में कुछ लेकर के आएगा जब वो आएगा। So first of all, you must understand that we are saved by grace. और हमें इस बात को समझ लेना है कि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। After being saved, you and I, और- whatever we do for the Lord, together in prayer with the Lord, believing, having faith in God, we are going to earn reward. और विश्वास करने के उपरांत हम जो कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं विश्वास करते हुए उसका हमें प्रतिफल मिलता है। Okay? So ठीक है। saved by grace means we will have judgment for reward. और इसका मतलब है कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, हमें जो है प्रतिफल हमारे कार्यों के लिए मिलेगा। I will explain that very easy. और इसका मैं बड़ी आसानी से आपको In बखान this करके बताऊंगा। world, everybody is going to be judged. और इस संसार के अंदर हर एक का न्याय होना है। Christians are going to be judged. Wicked people are मसीह also लोगों का going to be न्याय judged. होगा, दुष्ट लोगों का भी न्याय होगा। Okay? But when ठीक है। Jesus judged the Christian people, he is लेकिन जब यीशु मसीह because we मसीह are saved by लोगों का न्याय grace, करेगा, we are क्योंकि saved by हम- grace, क्योंकि we will be अनुग्रह से हमारा rewarded. उद्धार हुआ है, तब हमें प्रतिफल मिलेगा। But the others who are not having the faith and not saved by grace, they will go through the judgment. लेकिन जिनके पास विश्वास नहीं है या अनुग्रह से उनका उद्धार नहीं हुआ, उन्हें न्याय की प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा। If you want to understand further, it is like being a father. अगर आप आगे समझना चाहते हैं तो पिता होने के नाते, We have a lot of children. जैसे कि हमें बहुत सारे बालक हैं, बच्चे If हैं उसके children पास। do good, we will अगर reward them. बच्चे अच्छा करते हैं तब हम उन्हें प्रतिफल देते हैं, उपहार If देते they हैं। do bad, we will punish them. और अगर वे बुरा करते हैं तब उन्हें दंड मिलता है। This is our judgment. ये हमारा न्याय होता है। We are going to judge them. They do good, we reward them. Do bad, we punish them. और एक पिता होने के नाते अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो हम उन्हें प्रतिफल देते हैं, अगर वे बुरा करते हैं तो उन्हें दंड मिलता है। And I ये also न्याय want to है। say, in heaven, there is going to be great people and there is going to be least people. Least people means they don't have much this one. But everybody is going to be happy in heaven, but there are great and least in the kingdom of heaven. और स्वर्ग के राज्य में ऐसा होने जा रहा है कि कुछ लोग बहुत महान होंगे और कुछ लोग बहुत छोटे होंगे, और हर एक जो है वो वहाँ पर होंगे, पहुँचेंगे जो विश्वास करते हैं, लेकिन जो है वहाँ छोटा होना और बड़ा होना वहाँ पर है। Don't think everybody will be the same. ऐसा ना समझे कि सब लोग एक समान होंगे। Okay? So, what are the है। rewards that God has kept for us in heaven? और वो क्या प्रतिफल है जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। 3 rewards is already written in the Bible, बाइबल के अंदर 3 प्रतिफल के बारे में जिक्र किया गया है, but there are millions not written in the Bible, लेकिन बाइबल में ऐसे कई सैकड़ों हैं जिसका जिक्र नहीं किया गया है, which the Bible say we cannot comprehend, we cannot think about it. It's too high reward. और इसके बारे में बाइबल बताती है कि हम विचार भी नहीं कर सकते। Okay, one of the reward is the crown. और उनमें से एक जो प्रतिफल है वो मुकुट है। Okay, this crown is for us to worship God and to bow before Him and to adore Him. और ये मुकुट हमें इसलिए दिया गया है एक प्रतिफल के रूप में, ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सके, प्रशंसा कर सके, आराधना कर सके। Okay, so these are all the 10 topics which we will be going through. But if you attend the first 2 topics, then only you can understand the rest of the topics.
और ये 10 विषय ऐसे हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन अगर आप 2 विषयों को सबसे पहले समझ लें तो बाकी के विषयों को आप आसानी से समझ पाएंगे। I will spend more time on the first two topics for you all to really understand. After that, anybody comes in also, it will be difficult for them to understand. और मैं 2 विषयों के ऊपर आपको ज़्यादा समय लूँगा, उसके बाद अगर कोई बीच में आएगा तो फिर जो है उनको आगे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। I have also discussed with Pastor Daniel Kamraj regarding the time. We kept it 2 hours. We are going to make it 1.5 hour. और मैंने पास्टर धन कमराज जी से बातचीत कर रहा था कि हमने ये 2 घंटे रखे हैं और इसको हम जो है 1.5 घंटे में तब्दील कर दें तो कैसा रहेगा। I will start very punctually at 8 o'clock. और उसके लिए मैं बिल्कुल जो है ठीक समय पर शुरू करूँगा And 8 I will बजे finish by 9:15 or 9:30 within that time. और समय रहते हुए अपने समय के अंतर्गत ठीक 9:30 बजे मैं उसे समाप्त कर दूंगा। And after that, I will open it up for the participants to ask any questions related to the teaching or any other thing which the Holy Spirit can lead us. During the time, we will see how we can go about with it. उसके बाद जो भागीदारी है इसमें वो आधे घंटे के लिए सवाल कर सकते हैं, उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है या जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाते समय कोई सवाल आ रहा है तो आप वो आधा घंटा आपको दिया जाएगा सवाल पूछने के लिए। Before I hand over to Pastor Daniel, I just want to remind you one verse which is written in the Bible. If anyone does not love the Lord, a curse be on him. Oh, come, O Lord, Maranatha. 1 Corinthians 16:22. और इससे पहले पास्टर दानियल को मैं सारी को सौंपूं समर्पण करने से पहले एक आयत मैं आपको याद दिलवाना चाहूँगा और लिखा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम नहीं रखता तो वह श्रापित है। हे प्रभु जल्दी आ, मारानाथा। 1 कुरिन्थियों अध्याय 16 उसकी 22। I hand over to Pastor Daniel. Praise the Lord. Thank you so much. Thank you so much, Brother Paul, for the wonderful teaching and slides that you shared. Did a wonderful research on this particular subject, which is very hard all the time to understand. And I really appreciate for all of your hard work. We respect, highly honor the people who speak about the Word of God. And you really taught such a wonderful teaching today. And really, people have been blessed. Thank you so much once again. I'll just अभी हम लोग बहुत अच्छा वचन को हमने जो है सुने हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू ओके वी आर गोइंग टू क्लोज नाउ सो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको और आप लोगों ने जो है ज्वाइन किया है। ऑलमोस्ट हम लोग जो है 45 पीपल हमारे पास जोड़े हुए थे, लेकिन लास्ट तक मीटिंग में जो है 38 लोग, ओनली 7 पीपल लेफ्ट इन द बिगिनिंग, इन द मिडिल। 7 लोग जो है बीच में से चले गए। अदरवाइज 38 पीपल जो है अभी तक थे, अभी 3-4 लोग अभी चले गए। नो प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को अगला सेशन जो है क्लासेस 8 तारीख होगा। आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 8 तारीख जो है आपके पास लिंक जो भेजा गया है उसी लिंक में आप लोग टाइम पर आ जाइए। 8 बजे से लेकर 9:15 तक होगा। उसके बाद 15 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर होंगे और 1.5 घंटे तक स्टडीज है। अब हमारा हम लोग जो है समय बिताना है कि परमेश्वर कलाम को सीखने के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है। द होल बुक ऑफ रेवलेशन हैज बीन डिवाइडेड 10 टॉपिक्स ऑफ 10 ऐसे लेसन्स के द्वारा आपको सिखाया जाता है। हम लोग जो है समय निकाल के उस वचन को सीखने के लिए हम लोग समय पर पहुंचाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर नोट्स चाहिए प्लीज़ मेरा नंबर नोट कर दीजिए। मैं मेरा नंबर में टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। आप लोग जो है इस नंबर में तुरंत मुझे क्या करना है और आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा। 9896491313। आप उसमें लिखा अपना नाम लिखना, अपना जगह लिखो और नोट्स का रिक्वायरमेंट बोल दो, हिंदी में भेजना या इंग्लिश में भेजना, वो आप कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा। ये मेरा नंबर है 9896491313। इसमें आप लोग जो है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है।
इसमें आपको जो है कौन सा लैंग्वेज में नोट्स चाहिए बता दीजिए प्लीज काइंडली। आपको सेंड योर नेम प्लस आपका सिटी, देन ओनली मैं आप लोगों को मैं कर सकता हूँ, ध्यान रख दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी हमारे पास जो है म्यांमार से भी, बर्मा से भी हमारे पास जोड़े हुए थे लेकिन बीच में से चले गए, और बांग्लादेश से भी मेरा फ्रेंड अरुण सिमसोंग उसने भी ज्वाइन किया है। उसके अलावा अम्बाला से पास्टर्स, हरियाणा से और पंजाब से, बाकी यूपी और आई डोंट नो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बहुत जगह से हमारे पीसीस में है। और मैं सबको आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। खुदा प्रभु प्रभु आपके साथ रहे। और मैं बुलाना चाहता हूँ पास्टर दीपक। आर यू देयर दीपक? दीपक आर यू देयर? Pastor Deepak, Pastor Deepak, are you there? Okay, is not. Yes. Deepak, you have your best friend or any of our known people on this link. Do I don't know many of them, so probably you can ask any one of them to lead us in prayer. You have any name? Any known people are there? I don't know whether they have joined. I That's think okay, they have fine joined. then. I'll ask. Yeah, Pastor Stephen is there. Pastor Stephen. Okay, we'll go with Pastor Stephen. आप प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। थैंक यू। क्लोजिंग prayer. No. Pastor John Victor is there. Bishop Safi. Pastor John Victor, Bishop Safi. Pastor John Are you Victor, there? are you there? Yes, I am here. Yes, prayer, closing prayer आप करिए, और उसके बाद ब्रदर डॉक्टर डैनियल कामराज विल हैव ए फोटो सेशन। उसके बाद सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें, एक फोटो खींच लेंगे। यस, पास्टर जॉन विक्टर जी आप प्रेयर करें। Yes. महान अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु, हम आपके पवित्र और जलाली नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता, अच्छा वचन आज सुनने के लिए आपने मदद की, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके दासों के लिए जो मलेशिया से बैठकर पवित्र आत्मा एक अच्छा वचन को हमें सिखा रहे हैं रेवलेशन और डैनियल का बुक से। प्रभु जी, आपका भारी अभिषेक उनके द्वारा एक एक का जीवन में काम करे। आपका पाक और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बनी रहे। प्रभु जी, एक एक को आप ब्लेस करें प्रभु जी, ताकि हम सीखें और अपने जीवन को बीच में लागू करें, दूसरों को ब्लेस्ड करने वाले बन जाए। प्रभु जी, आपका पाक और पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को सीखने के लिए तो मदद कर। और जितने लोग खुदा यीशु मसीह इस समय इस टीचिंग को ले रहे हैं प्रभु जी, सबको अपने पवित्र हाथों में लेकर इस्तेमाल करें प्रभु जी। और जितने भी तमाम प्रभु आपके दास दासियां बेटे बेटियां जुड़े हुए हैं प्रभु जी, सबको मैं आपके लहू में ब्लेस करता प्रभु जी। बहुत आयत से आशीषित कर बरकत दे, ताकि आपके गहरे वचनों को आप सीखें प्रभु जी और उसी की इच्छा के अनुसार चलने पाए। प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और जाली नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन।